Let's माइक सीएम साहब। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद अनुराग का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी पृष्ठभूमि पूरी तरह एक जमीनी कार्यकर्ता की रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग उनके व्यापार को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जबकि ये व्यवसाय उनके पिता के समय से चला आ रहा है और पिता के निधन के बाद परिवार के सदस्य द्वारा जिम्मेदारी संभालना सामान्य बात है। उन्होंने बताया कि पार्टी हाईकमान के प्रतिनिधियों ने उन्हें जिलाध्यक्ष चुना था और बाद में राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया। अनुराग शर्मा जी की जो पृष्ठभूमि है, इनका व्यापार के बारे में बड़ी चर्चा होती है। वो तो इनके पिताजी के समय से चला हुआ है, वो कोई अभी से थोड़ी चला हुआ। अब बेटे इनके पिताजी उस उम्र में ध्यान रखकर चले गए तो इन्होंने उसको संभालना था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, बीड बिलिंग में पहला वर्ल्ड कप जो है मैं वहां खुद गया था, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हमने नहीं चुने। ये तो केंद्र के जो संगठन सृजन के आदमी आए थे उन्होंने चुने। उन्हीं संगठन सृजन से एक राज्यसभा का सदस्य आज पहली बार बना है। पूरे देश ने एक संदेश दिया है और इस संदेश के कोई 6 महीने में तो राहुल गांधी जी है जिन्होंने एक कार्यकर्ता को राज्यसभा का संसद सदस्य बनाया है। और फिर कहते हैं ना कि गुणवान बड़ा की भाग्यवान, इसमें संगठन से जिससे 4 जिला अध्यक्षों में से भाग्य ने अनुराग जी का साथ दिया, तो अनुराग जी संसद सदस्य बन गए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग कार्यकर्ता आने वाले समय में जो चुनौती है उसका सामना करने के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एआईडीएमके को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवा भीड़ तमिलनाडु को निगलना चाहती है, लेकिन द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने दावा किया कि राज्य में द्रविड़ विचारधारा और सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। மக்களின் உரிமைகளுக்காக எப்போதும் களத்திலே நிற்கக்கூடிய கட்சி எங்களுக்கு தெரியும். தமிழ்நாட்டோட, தமிழ் மொழியோட, தமிழ் பண்பாட்டோட உண்மையான எதிரி யார் என்று எங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். அந்த எதிரியை எதிர்க்கக்கூடிய தெம்பும் திராணியும் கொண்ட ஒரே இயக்கம் திமுக என்பது மக்களுக்கு நல்லா தெரியும். அதிமுக முகமடியை போட்டுக்கிட்டு வந்தா எங்களுடைய தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு உங்களை அடையாளம் தெரியாம போயிடுமா? உங்களை முகத்திலே கிழிச்சு தமிழ்நாட்டு மக்கள் கிட்ட நாங்க அம்பலப்படுத்துவோம். தமிழ்நாட்டை எப்படியாவது நம்ம கிட்ட இருந்து விழுங்கி விடலாம் என்று நினைக்குது இந்த காவி கூட்டம். எங்க கருப்பு சிவப்பு பொட்டால் இருக்கிறவரை அது நடக்கவே நடக்காது. உங்க அப்பனே வந்தால் நடக்காது, நடக்க விட மாட்டோம். இது அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். அதனாலதான் அதிமுக என்ற கட்சியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விழுங்குறாங்க. அரசியல்ல நேர் எதிரியா இருந்தாலும் அதிமுக தொண்டர்கள் மேல நாங்கள் உண்மையாக பரிதாபப்படுகிறோம். அவங்களுடைய உணர்வுக்கு மாறாக கட்சியை கொண்டு போய் டெல்லியில் அடமானம் வச்சுட்டாரு பழனிசாமி. தன் சொந்த நலனுக்காக, சுயநலத்திற்காக எப்படியாவது முதலமைச்சராக ஆகணும் என்ற நப்பாசையில பழனிசாமி அடிமையா கிடக்கிறாரு. பீகார் மாநிலத்தில் இதுவரை பாஜக முதலமைச்சர் இருந்ததே கிடையாது. நிதிஷ்குமார் அவர்களை முன்னிறுத்தி தேர்தலை ஜெயிச்சுட்டு இப்ப காரியம் ஆனதும் அவரை ஓரங்கட்டிட்டு பாஜக முதலமைச்சரை உள்ள கொண்டு வர போறாங்க. இதையே தான் தமிழ்நாட்டிலும் பண்ணலாம்னு ட்ரை பண்றாங்க. நான் அடிச்சு சொல்றேன், சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்றேன், இந்த முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலினும் எங்க திமுக இருக்கிறவரை பாஜகவால் தமிழ்நாட்டை ஆள முடியவே முடியாது. தமிழ்நாடு எப்பவுமே உங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் தான். நாங்கள் பார்க்காத படையெடுப்பா, திமுக பார்க்காத மிரட்டலாம். நீங்க இந்தியா மேப்ல இருக்க எந்த மாநிலத்து மேல வேணுமானாலும் காவி அடிச்சிடலாம். ஆனா தமிழ்நாட்டில் உங்க பாச்சா பலிக்கவே பலிக்காது. இங்க எப்பவுமே நாங்க தான், எங்க மண்ணில் நாங்க தான் ஜெயிப்போம், நாங்க மட்டும்தான் ஜெயிப்போம். வெல்ல போவது தமிழ்நாடு அணியா டெல்லி அணியா என்பதுதான் 2026 தேர்தல். இதுல தமிழ்நாடு அணி வெற்றி பெறணும்னா திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி தான் வெற்றி பெறணும்.
உங்க வாக்குகளை திமுகவுக்கும் கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் போடுங்கன்னு கேளுங்க. இதுதான் நீங்க அடுத்த 2 மாசத்துக்கு இடைவிடாம மக்கள் கிட்ட பரப்ப வேண்டிய மெசேஜ். அதே போல இங்க வந்திருக்கக்கூடிய உடன்பிறப்புகளுக்கு நான் வைக்கிற இன்னொரு வேண்டுகோள் என்பது, உதயசூரியன் சின்ன வெற்றி பெற நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் எந்த அளவுக்கு உழைக்கிறீங்களோ அந்த உழைப்பை நம்ம கூட்டணி கட்சியின் சின்னங்களின் வெற்றிக்கும் கொடுக்கணும். असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी 15 मार्च तक उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और उम्मीदवारों के चयन को लेकर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। द्वितीय पर्याय आमी इलेक्शनर दिनर ऊपर ठीक हब। अहा कालिर परा 15 तारिखर भितरत आमी प्रार्थी तालिका चूड़ान्त करिब लागिब। तार पिছত इलेक्शन कमिशने जदि इलेक्शन पिछुवाई दिए बा आरु अलप देरिकै हय आमी थार्ड फेज करिम, नहले इलेक्शनर लगते यात्राटो चलि थाकिब। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि इस बार वित्त विभाग ने समन्वय कर ये सुनिश्चित किया है कि सीनियर सिटीजन पेंशन और गृह आधार पेंशन हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के खातों में जमा हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन योजनाओं के तहत हर महीने लगभग 45 करोड़ की राशि वितरित की जाती है, जो सालाना करीब 5,443 करोड़ तक पहुंचती है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पेंशन लाभ समय पर जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। इस बार हमने दोनों डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कोऑर्डिनेट करके हर 10 तारीख को सीनियर सिटीजन पेंशन और गृह आधार पेंशन उनके अकाउंट पे इकट्ठा हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली द 45 करोड़ ऑफ रुपीज़ एवरी मंथ वी आर रिलीजिंग फॉर द सीनियर सिटीजन एंड फॉर द गृह आधार। एनुअली इट इज अमाउंट इज 5,443 करोड़ हो जाते हैं, वो एनुअली अमाउंट हो जाते हैं। इसके सिवाय कलाकार पेंशन और बाकी पेंशन भी हम देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली द 50 करोड़ ऑफ रुपीज़ पर मंथ ये पेंशन गोवा के लोगों को मिलती है और विच इज इन 40% ऑफ द वोटर्स इसकी पेंशन दी जाती है। हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने के लिए हम इस तरह के डिफरेंट स्कीम्स गोवा में जो कर रहे हैं। मैं फिर एक बार जो आज नई पेंशन सैंक्शन हो गई है इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मेरे दोनों डिपार्टमेंट के दोनों मिनिस्टर्स दे आर वर्किंग हार्ड टू रेगुलराइज दिस और टू गिव ऑन टाइम इस पेंशन देने के लिए काम करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से करीब 1,884 करोड़ की राशि एक क्लिक से सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने बताया इस राशि में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दयालु योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल मुआवजा तथा आढ़तियों को राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अतिरिक्त कमीशन शामिल है। आज हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो खरीफ की फसल के लिए किसानों की बीमा क्लेम वो भी वितरित किए गए। ये लगभग 1,67,460 किसानों के बैंक खाते में 711 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि ये भेजी गई है, वितरित की गई है। आज प्रदेश के लगभग 11,199 आढ़तियों को आज हमने यहाँ से 56 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाने का काम किया है। और आज हमने दयालु योजना के तहत 5,409 परिवारों को 205 करोड़ 42 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम किया है। मुझे खुशी है आज हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसके तहत 12,353 लाभार्थियों के खाते में मकान निर्माण के 67 करोड़ रुपए पहुंचाने का काम आज किया है, आज राशि जारी की है। और इस प्रकार आज हमने विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 1,884 करोड़ रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में डाली है, क्योंकि हमारी सरकार का ये कमिटमेंट है और लगातार हम उस कमिटमेंट को नॉन स्टॉप हमारी सरकार पूरा कर रही है। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।